Hello and welcome to Legacy IS Academy. So in this video we will be discussing the environment section of 2021 UPSC prelims exam. So in this video we will be analyzing questions from the environment section that were asked in the 2021 prelims exam and providing you with the insights on how to approach such questions and what can be the future prospects in the environment section for upcoming prelims exam like 2023 and 2024. So watch this discussion till the end to get the maximum benefit. So if you are new to our channel, we are excited to have you here, and don't forget to like, share and subscribe to our channel and for more such informative videos. So let's start this. So UPSC previous questions में how many questions actually came in this 2021? We need to find out first that. So in 2021, in environment section, total 16 questions were asked out of 100. So 84 questions belongs to the different subjects like polity, economy, history, geography, etc. So out of that 16 questions directly come from the environment section, and that is the reason is we cannot ignore these questions. So one by one we are going to discuss these questions. So first question is, it is easy question basically. We can consider it as easiest question for environment section. So in the case of which of the following biogeochemical cycles, the weathering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycle. So जो biogeochemical cycles जब आप पढ़ते हो उसमें you must have covered two types of cycles like gaseous cycles and sedimentary cycles, correct? गैसियस साइकिल्स मतलब वो साइकिल जिसमें मैक्सिमम रिजर्व एटमॉस्फेयर में होता है, लाइक ऑक्सीजन साइकिल, लाइक वाटर साइकिल, करेक्ट, लाइक नाइट्रोजन साइकिल. सेडिमेंट्री साइकिल्स लाइक फॉस्फोरस साइकिल्स एंड फॉर एग्जांपल सल्फर साइकिल, क्योंकि जहां पे जो मैक्सिमम रिजर्वायर होता है वो इन द सेडिमेंट फॉर्म में होता है, स्पेशली इन द रॉक. सो क्वेश्चन वाज दिस. So carbon cycle basically a gaseous cycle and nitrogen cycle is gaseous cycle and phosphorus cycle and sulfur cycle, correct? सो क्वेश्चन ये था कि इन दिस मेन सोर्स जो है रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू इंटर द साइकिल किस में आता है, फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल. व्हाट कुड बी द आंसर हियर? सो कैन यू कमेंट द आंसर हियर? सो व्हाट कुड बी द आंसर हियर इज, सो you may confuse basically under this between phosphorus cycle and sulfur cycle. तो मेन सोर्स ऑफ रिलीज अगर देखा जाए तो आंसर विल बी द फास्फोरस साइकिल. सिंपली ये फास्फोरस साइकिल में क्या होता है, लाइक दिस इज द रॉक, ये रॉक है, इसका वेदरिंग होगा, क्या होगा, वेदरिंग विल गोइंग टू टेक प्लेस. वेदरिंग के बाद क्या होगा, इट विल गोइंग टू इंटर इनटू द सॉइल और सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा. एंड ये जो सॉइल से जो भी फास्फोरस होगा इट विल बी असिमुलेटेड इन द प्लांट्स, करेक्ट. सो ये प्लांट्स में जाएगा. प्लांट्स विल बी ईटन बाय बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर्स, करेक्ट. सो प्राइमरी कंज्यूमर्स, सो ये जो फास्फोरस है प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएगा. प्राइमरी कंज्यूमर्स रिटर्न बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सो दिस विल गो टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स. और कुछ जो होगा फास्फोरस वो किसी नियर बाई वाटर बॉडी वाला लेक उसमें चला जाएगा. एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि ये सारा कुछ आफ्टर सम टाइम डेथ होने के बाद ये क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन विल गोइंग टू टेक प्लेस. जब डिकम्पोजिशन विल टेक प्लेस, डिकम्पोजिशन के बाद क्या होगा, इसका मिनरलाइजेशन विल गोइंग टू टेक प्लेस. Mineralization, after mineralization rock formation will going to take place, rock formation, and again it will enter into the rock. This is the complete phosphorus cycle. So answer is phosphorus cycle. Sulfur cycle basically इसमें in the form of H2S gaseous form में भी available रहता है, correct. So main source जो होता है वो होता है आपका phosphorus cycle. अब now we will move to another question. Second question ये है, ये बेसिकली करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, करेक्ट, बिकॉज इन 2020 में बेसिकली ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को घोषित किया गया था. तो इसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है. इसमें क्या पूछा गया कि यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड द अर्बोर फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज द 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड. सो इसलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर का पार्ट था इसलिए ये क्वेश्चन आया है. तो आपको ये घबराना नहीं है कि अगर ये आज क्वेश्चन आया था तो आप आंसर कर पाते या नहीं, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर का वो बेसिकली आपका 2022 और 2023 के ही न्यूज से आएगा.
तो ये करंट अफेयर में था इसलिए क्वेश्चन आया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट बेसिकली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज हैदराबाद जो है हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्बोर डे फाउंडेशन। ये बात सही है, करेक्ट, दिस इज करेक्ट, बट नॉट बाय दिस, बट किसके क्या है, FAO। व्हाट इज दिस FAO? बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। So it was not done by United Nations Capital Development Fund but by Food and Agriculture Organization। तो फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना आपका दैट इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो सकता है अभी? D। Second statement, Hyderabad was selected for recognition for a year following its commitment to grow and maintain the urban forest। So definitely it is also a correct statement, and Hyderabad earned recognition basically in the foundation's second year of program only, along with 51 other cities, and this was the only city in India to get this recognition, correct? So that is the reason statement 2 is correct but statement 1 is not correct। सी एक चीज आपको बता दें, अर्बन फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आजकल यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड विद REDD, क्वेश्चंस रिलेटेड विद REDD प्लस, एंड क्वेश्चंस रिलेटेड लाइक न्यूयॉर्क, करेक्ट, न्यूयॉर्क फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, क्वेश्चंस रिगार्डिंग बॉन्ड चैलेंज, questions regarding basically forest carbon partnership facility, question regarding forest investment program, correct? So ये सारे forest related question है। like example Miyawaki method of this urban mini forest। so see फॉरेस्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है यूपीएससी के लिए, स्पेशली फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जिसको लेके यूपीएससी ईच एंड एवरी ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो करंट अफेयर में जो भी अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई अगर न्यूज है तो उस पर आपको खास ध्यान रखना है, बिकॉज दैट कैन बी द इंपॉर्टेंट ओके टॉपिक फॉर द अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये देखो न्यूज था, हैदराबाद रिकॉग्नाइज्ड एज ए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब है वो एग्रीकल्चर का मेथड जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, वो है आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। ये सही है या नहीं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट बेसिकली करेक्ट है, बिकॉज क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट इन इंडिया इट इज ए प्रोग्राम ऑफ बेसिकली दिस CGIAR, करेक्ट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। CGIAR ये आपका जो ये है इसी का प्रोग्राम है ये, correct? This program started basically, CCAF started this piloting smart agriculture program in Africa। कहां स्टार्ट किया था? अफ्रीका में। अफ्रीका में बेसिकली स्टार्ट किया था आपका लाइक बुर्किनो फासो, करेक्ट, घाना, माली, नाइजर, केन्या, इथोपिया, करेक्ट, उगांडा, एंड साउथ एशिया में बेसिकली बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। यहाँ पे ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे हम आपको हिंट दे देते हैं कि अपकमिंग यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जितने भी कंट्री हमने अभी आपको नोट डाउन करवाए अफ्रीका में, एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल। आपको कमेंट करना है व्हाट इज दिस ग्रेट ग्रीन वॉल, जो कि साहिल रीजन में है, साहिल रीजन ऑफ अफ्रीका। तो आपको बताना है व्हाट इज दिस ग्रेट ग्रीन वॉल। अगेन हमने वही बताया, इंपॉर्टेंट किस लिए? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के मद्देनजर और कंटेक्स्ट में दिस ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि दिस प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट जैसे ही करेक्ट होगा तो दिस विल नॉट बी द आंसर। Second is project of CCAF is carried out under consultative group on international agriculture research headquarter in France। Again ये भी factual question है, ये भी एकदम correct question है,
करेक्ट सॉरी स्टेटमेंट है, इसमें कोई मतलब ये नहीं कि इट इज नॉट करेक्ट, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये लोकेटेड फ्रांस में ही है। थर्ड इज इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ द CGIAR's रिसर्च सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में इंडिया के लिहाज से और यूपीएससी प्रीलिम्स के मद्देनजर। आपको मैं बता दूं, जो ये आई क्राई सेट है जो आपका, इट इज ए नॉन प्रॉफिट, ये आपका क्या है, इट इज ए नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल public international research organization that conduct agriculture research for the development in Asia and sub-Saharan Africa with a wide array of partners throughout the world. So this third जो statement है, ये third statement भी आपका correct है, तो आंसर आपका हो जाएगा basically D. Next question, consider the following kinds of organisms. ये है organisms आपके, इसमें पूछा विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मींस दोज हु आर यूजिंग फोटोसिंथेसिस, करेक्ट, फोटोसिंथेसिस जो यूज करते हो। सी डाइटम को लेके ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, डाइटम को लेके यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन आपका था रिगार्डिंग फूड चेन। तो देखो यूपीएससी ने उस समय वो क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग द फूड चेन, जिसमें डाइटम भी उसमें एक ऑप्शंस में था कि डाइटम जो उसका जो सीक्वेंस है वो किधर आएगा। तो उस समय अगर आपने वो पढ़ लिया होता तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता, क्योंकि उसमें था कि जो डाइटम है ये बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ये क्या है आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, मतलब ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। When they are phytoplankton, that means they are using photosynthesis, they are the primary producers. तो जहां जहां 3 होगा that will be the answer, that means this will not be the answer, this will not be the answer. Now either B or C. उसके बाद आता है साइनोबैक्टीरिया। कितनी बार आप साइनोबैक्टीरिया पढ़े हो, बेसिकली जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हो एट दैट टाइम साइनोबैक्टीरिया जरूर आपने पढ़ा होगा। तो साइनोबैक्टीरिया बेसिकली कुछ और नहीं है, ये ब्लू ग्रीन एल्गाई है, ब्लू ग्रीन एल्गाई। और ब्लू ग्रीन एल्गाई ये क्या है, ये भी बेसिकली फोटोसिंथेसिस ही यूज करते हैं फॉर द फूड प्रोडक्शन। सो दे आर आल्सो द क्या हो गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर ओनली। सो 2 भी करेक्ट है। सो देखो 3 करेक्ट, 3 इसमें है एंड 2 हियर है, तो आंसर विल बी बी ओनली, करेक्ट, सिंपल। तो दिस वाज अगेन दिस आई इट इज अ मॉडरेट, एक्चुअली मॉडरेट और बिलो मॉडरेट इवन। दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए होते तो डाइटम तो तुरंत ही पता चलता है, साइनोबैक्टीरिया आल्सो तुरंत ही पता चल जाता है आपको, करेक्ट। सो जो कोपैट होते हैं दे आर बेसिकली क्रुस्टासियंस होते हैं। तो उस क्वेश्चन में क्रुस्टासियन भी था, बेसिकली क्रुस्टासियंस भी था, जो मैंने बताया था फूड चेन का क्वेश्चन जो था उसमें क्रुस्टासियन भी एक सीक्वेंस में जुड़ा हुआ। तो सो कुपोट्स आर नथिंग बट देयर क्रुस्टासियंस, दे आर बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड ओशियन। और जो फोरामिनिफेरा है ये कुछ और नहीं, बेसिकली जस्ट लाइक अमीबा है, करेक्ट। जो फोरामिनिफेरा है दे आर नथिंग बट जस्ट लाइक अमीबा ओनली, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। क्या है ये, सिंगल सेल्ड organisms, correct. So this is also, they also will fall under heterotrophic organisms only, correct. So they are not primary producers, so answer will be B only। एकदम हलवा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर 2-3 बार पढ़ना, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही कोई क्वेश्चंस अगेन यूपीएससी विल गोइंग टू आस्क इन प्रीलिम्स एग्जाम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, जिसमें हेजहॉग, मरमोट एंड पेंगोलिन इसके बारे में है। तो टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स व्हिच ऑफ द अबव ऑर्गेनिजम्स रोल्स अप, और करेक्ट मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बचने के लिए, करेक्ट, जब भी उस पर अटैक होता है बचने के लिए अपने आप को रोल कर लेता है, करेक्ट। सो सी ये न्यूज में था बिकॉज जो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उस समय फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव रेडियो टैग्ड दिस पंगोलिन, एंड दिस पंगोलिन इज आल्सो, जो पंगोलिन है इट इज द वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड एक्चुअली एनिमल है, करेक्ट। तो इसका डिटेल आर्टिकल भी आया था 2020 में, इवन इन 2021 में भी आया था। एंड एक और अलर्ट फॉर बुबानिक ओके प्लेग हुआ था कॉज्ड बाय मरमोट इन चाइना अगेन इन 2020। सो देखो ये क्वेश्चन कब आया, 2021 में। सो दिस अगेन बेस्ड ऑन करंट अफेयर ओनली। अगर आप करंट अफेयर प्रॉपर पढ़ रहे हो देन इट विल बी ए इजी क्वेश्चन फॉर यू। अब पढ़ते हैं वन बाय वन ये होता क्या है।
तो अब आपको हम दिखा देते हैं पिक्चर में दिखाते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। सो ये देखो आपका हेजहॉग है, जिसको हम लोग बेसिकली विलायती चूहा और बड़ा चूहा और कांटेदार चूहा बोलते हैं, वो रैट बेसिकली। सो इट लुक्स लाइक ए रैट, जिसमें ऐसे करके स्पाइक्स होते हैं। सो वेन एवर एक्चुअली इट इज अटैक्ड, इट इज गोइंग टू मेक ए रोल। सो दिस हेजहॉग इज गोइंग टू मेक द रोल। पेंगुलिन, जिसमें ये जो पेंगुलिन जो आपका है बेसिकली, इसमें स्केल्स होते हैं, ये मम्मल्स की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मम्मल्स एंड दिस इज द ओनली मम्मल्स जिसको स्केल्स होते हैं। दिस इज द ओनली मम्मल्स जिसको स्केल होते हैं। ये हमने एक अच्छा चीज आपको बताया है। सो दे आर द ओनली मम्मल्स wholly covered in scales and they use those scales them to protect themselves from the predators in the wild, correct? एंड इवन जो अर्माडिलो होते हैं, दे आर ऑल्सो डू द सेम थिंग, बट ये ऑप्शंस में नहीं दिया था, तो वी आर नॉट गोइंग टू कवर इट। एंड जो मरमोट जो होते हैं, जो मरमोट बेसिकली ए लार्ज ग्राउंड स्क्वायरल्स, ये स्क्वायरल जैसे होते हैं, करेक्ट? सो दे आर हैवीएस्ट मेंबर्स ऑफ द स्क्वायरल फैमिली। इट डज नॉट रोल अप टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ये जो मरमोट होता है, they do not roll up to protect itself. So अभी आपके जो क्वेश्चन हो सकता है वो क्या होता है, उसमें अगर ऑप्शंस देखा जाए तो उस ऑप्शंस में हमें पता चल जाएगा कि मरमोट वाला जो ऑप्शन था दैट वाज इनकरेक्ट एक्चुअली, करेक्ट? मरमोट विल नॉट गोइंग टू, बट हेजॉग एंड पेंगुलिनियन बोथ आर गोइंग टू actually going to roll up, so that will be the answer. So answer basically will be 1 and 3, that is D answer, correct? Next question we are going to move. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली विथ रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन द फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सबसे पहले, इससे पहले आपको जानना है कि व्हाट इज बॉर्न चैलेंज। बॉर्न चैलेंज बेसिकली है टू प्रोटेक्ट 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। इसको प्रोटेक्ट करना है, रिफॉरेस्टेशन करना है, इस चीज के लिए। इसी का बॉर्न चैलेंज का क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, बिकॉज 150 मिलियन इज टू लेस। इसको बढ़ा के टारगेट कर दिया 350 मिलियन हेक्टेयर। क्या टारगेट कर दिया? 350 मिलियन हेक्टेयर, करेक्ट? दिस टारगेट वाज एट कि रिस्टोरेशन कितना होगा, रिस्टोरिंग 350 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंडस्केप्स, करेक्ट? लैंडस्केप्स एंड फॉरेस्ट लैंड, करेक्ट? यही था आपका न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। तो देखो बॉर्न चैलेंज इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? एंड उसके बाद दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन क्यों आया था, बिकॉज इंडिया आल्सो रेज द टारगेट अंडर बॉर्न चैलेंज इन सितंबर 2019 ओनली, करेक्ट? एंड बॉर्न चैलेंज वाज एक्सटेंडेड बाय दिस न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, करेक्ट? सो दैट इज द रीजन इट बिकेम इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, इट वाज फर्स्ट इंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014। सो ये स्टेटमेंट बेसिकली आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, नो डाउट। Second, it endorses a global timeline to end the loss of forest. So basically जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट है, it emphasizes 10 goals which includes halting natural forest loss by 2030, and target also includes restoration of 350 million hectare of degraded landscape and forest land, improving governance, increasing forest finance and reducing emission, correct, from deforestations and forest degradations as part of this post 2020 global climate agreement. So ये second statement correct है। Third statement, it is legally binding international declaration. See, it is not a legally binding international agreement. So जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट है, it is a voluntary and non-binding declaration to take action to halt the global deforestation. So third is not a correct statement. So B and C will not be the answer. Now comes to fourth क्या है, it is endorsed by government, big companies and indigenous communities. Answer सही है, it has presently over 200 plus endorsers, correct, including basically national government, sub-national government, companies, indigenous groups, financial institutions and NGOs, correct? So that is correct statement. Fourth is India was one of the signatories at its inception. See, India has not signed this New York Declaration on Forest. India ने क्यों sign नहीं किया? Because somehow these guys, they were linking forest restoration with trade, correct?
with trade. And India was saying that India का जो मेन जो था वो बोल रहा था कि जो इन ट्रेड है, trade should be discussed in WTO, not here. This is not the okay platform जहाँ पे we need to discuss regarding the trade. And कुछ countries जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी वो बोल रही थी आपने पाम ऑयल, कोकोआ, इन सबको आपने ऐड कर दिया है अंडर दिस. So how we need to restore this palm oil, जबकि ये तो हमारी इकोनॉमी है. So they also not signed this signatory. तो fifth is also incorrect. So fifth incorrect हो गया तो ये भी आंसर नहीं है. तो आंसर will be basically क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए will be the correct option. Correct? आपको हम शो भी कर देते हैं कुछ कि इसका क्या हिस्ट्री है. सो बेसिकली in 2014 New York Declaration on Forest was adopted as a political declaration calling for the end of natural forest loss and restoration of 350 million hectare of degraded landscape and forest by 2030, and it was endorsed by nearly 200 government, multinational companies, indigenous peoples and civil society organizations. बाकी जो आपको ये सब है आप वीडियो को पॉज करके अगेन यू कैन रीड दिस इंटायर डॉक्यूमेंट. करेक्ट. एंड वन मोर थिंग, अगेन कुछ एक न्यूज में आपको शो करते हैं कि फॉरेस्ट डिक्लेरेशंस इंडिया रीड्स फाइन प्रिंट चूजेस टू स्टे अवे. दिस वाज अगेन इन द न्यूज कि इंडिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, करेक्ट, and South Africa, they are the only G20 countries that did not sign the declaration because this declaration basically interlink. क्या interlink करता है? Trade to the climate change and forest issues, and trade falls under the WTO and should not be brought under the climate change declarations. Correct? And that is the reason is 28 governments हैं, they have also committed to remove deforestation from the global trade of the food and agricultural product जैसे palm oil, सोया, कोकोआ, उन्होंने भी इसको साइन नहीं किया है. क्लियर. सो दिस थिंग आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा इसमें कि रिसेंटली आपको अगेन हम बता दें तो रिसेंटली 2022 फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट वाज पब्लिश्ड. रिसेंटली क्या हुआ, एक फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट पब्लिश हुआ था. ये न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके 2023 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए. इट्स शोइंग दैट deforestation rates worldwide declined only modestly in 2021 by 6.3% compared to this 2018 baseline, and Brazil was the world's largest contributor to deforestation in 2021. again ये important है आपके prelims exam के लिए 2023 के लिए. So now we are moving to the next question. Next question ये आता है जो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स हैं, दे आर सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स. दे आर जनरेटेड एज एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. अगेन ये थोड़ा हटके है, लेकिन अगर आपने सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के बारे में पढ़ा हो, दे आर एयर पॉल्यूटेंट. करेक्ट, एयर पॉल्यूटेंट. सो जो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स हैं लाइक नैनो पार्टिकल्स, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स ऑल फॉल अंडर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में, जैसे ब्लैक शूट उसमें आता है. So जो magnetic particles हैं, they are highly actually magnetic minerals form of iron, and they are known to present in the air pollutions. And exposure to this airborne particulate matter is associated with pulmonary, cardiovascular, and neurological problems like neurodegenerations and cardiovascular disease. अब इसमें ये आता है कि इनमें which of the following activities में ये magnetic particles जो है they are released. तो first basically break of the motor vehicle system. Correct? So yes, जो व्हीकल ब्रेक सिस्टम है, they are one of the major source of airborne magnetic at the roadside. Correct? Because जो बेसिकली जो ब्रेक सिस्टम आजकल आ गए, ABS सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल्स, एंड दीज बेसिकली यूज मैग्नेट्स. ये क्या यूज करते हैं? मैग्नेट्स. करेक्ट. एंड इन मोटर व्हीकल्स, एंड दीज मैग्नेट्स बेसिकली जनरेट मैग्नेटिक पार्टिकल्स. सो ये करेक्ट है. Then engines of motor vehicles, so definitely engines of the motor vehicles होते हैं, they also can generate magnetic particles as they basically use high powered magnets which generate magnetic flux. Third is microwave stove within homes, so definitely in microwaves also क्या use करते हैं? Magnetic stirrer, correct, is used which can generate magnetic particles. Then power plants, so power plant basically release मेटल कंटेंट. क्या रिलीज करते हैं? मेटल कंटेंट along with ash. Correct. And use of coal basically in the power plant is a major source of combustion associated magnetic
फाइन पार्टिकल। सो 1 2 3 4 तो डेफिनेटली आंसर है। अब टेलीफोन लाइन जो है ना, क्योंकि 1 2 3 4 कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो डी ऑटोमेटिकली विल बी द आंसर। और टेलीफोन लाइन्स प्रोड्यूसेस लो फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स, करेक्ट। सो दैट इज ऑल्सो आंसर। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी अगेन मैं बता दे रहा हूं, जो मैग्नेटाइट है दे एक्चुअली हैव बीन फाउंड इन होमिंग पिजन। कहां पे मिला है? होमिंग पिजन्स, माइग्रेटरी सैल्मन एंड इवन bats, and is believed to play a role in their directional orientations, correct। so ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि अगर नेक्स्ट ईयर अगेन यूपीएससी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है, यू कैन गेट द राइट आंसर। नाउ वी आर मूविंग अगेन, अगर आपको न्यूज भी दिखा देते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फाइन पार्टिकल्स एंड नैनो पार्टिकल्स एनवायरमेंटल कंटेमिनेशंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ कोल। तो ये आपका हो गया पावर प्लांट से, पावर प्लांट। सो यू कैन रीड ओवर हियर, pause करके you can read this. Next is significance. Again, we identify the abundant presence of human brain of magnetite nanoparticles that match precisely the high temperature magnetic nanosphere, correct। so again आप ये पढ़ सकते हो, like by combustions, friction derived heatings which are prolific urban airborne particular matters, all this information is giving, you can read it। now we are moving to next question। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर मींस लाइक फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म है, इसने कोई वाटर अपने इनसाइड लिया, उसको फिल्टर किया, व्हाटएवर द न्यूट्रिएंट्स इज देयर, न्यूट्रिएंट्स ले लिया एंड अगेन वाटर को छोड़ दिया बाहर, दैट इज फिल्टर फीडर। क्यों छोड़ते, कैसे? इनके पास होता है गिल्स, इसकी वजह से। तो इसमें ऑप्शन में कैट्स, ऑक्टोपस, ऑयस्टर एंड पेलिकन में कौन ये करता है? सो डेफिनेटली जो ऑयस्टर्स होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज नेचुरल फिल्टर्स, they are considered as natural filters, correct, because they capture the particles of size as small as 4 micrometer on their gills and their gills act as a filter which is self cleaning। मैंने बोला था गिल्स होता है, करेक्ट। सो पेलिकन्स जो आपका है या ऑक्टोपस, कैटफिश, दे आर लार्ज ऑर्गेनिजम्स, they are not involved in such activities। so this is again a easy question है, it is not that difficult question। now moving to next question, again example of filter feeders, ये सारे examples दे दिए हैं, क्योंकि 2023 या 2024 में again if such question is coming then you can answer। so like for example oysters, whale shark, krill, sea sponges, flamingos, corals all are known as filter feeder। so please पॉज करो वीडियो को और इसको नोट डाउन करो, करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम अगेन दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हियर ओनली। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोरस। सो डेट्रीवोरस होता क्या है बेसिकली, पहले ये जानना जरूर। डेट्रीवोरस एक्चुअली में हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस बाय फीडिंग ऑन डेट्रिटस, दैट मींस डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स, ये होता है डेट्रीवोरस। आपको क्या कमेंट सेक्शन में बताना है, यू नीड टू टेल इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट्रीवोरस एंड डिकम्पोजर, दोनों में क्या डिफरेंस है, यू हैव टू टेल इन कमेंट सेक्शन, अगर आपने थोड़ा सा भी स्टैटिक एनवायरनमेंट पढ़ा है, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्रीवोरस। अर्थवॉर्म, डेफिनेटली दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, दे आर द डेट्रीवोरस। जेलीफिश एंड सी हॉर्स, अगेन जेलीफिश इज a carnivorous basically, correct, and seahorse is also primarily a carnivorous animal only, so they are not those who are feeding on detritus or dead animals। so definitely 2 and 3 will not be the answer। so jahan 2 and 3 that will not be the answer, automatically 1 to 4 will be the answer। so answer will be earthworm, millipedes and wood lice। ये कैसे दिखते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। earthworm already you are aware, millipedes and wood lice looks like this only, so they are also just like earthworm only, correct।
So now moving to next question. Next question ये है about common carbon metric supported by UNEP has been developed for, किस पर्पज के लिए इसको डेवलप किया गया है? So सबसे पहले है assessing the carbon footprint of building operations around the world. So again it was in the news only, that is the reason this question was asked. So for सबसे पहले we need to know what does it mean by carbon footprint. Carbon footprint क्या होता है? Carbon footprint means carbon footprint of an entity basically is nothing but total amount of greenhouse gas that are generated by that entity. ग्रीन हाउस गैस मतलब क्या क्या हो सकता है? ग्रीन हाउस गैस एग्जाम्पल, सो ग्रीन हाउस गैस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, करेक्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, perfluorocarbons, for example SF6, all are considered as greenhouse gas, but NO and N2O they are not greenhouse gas. Correct? So answer इसका ये है, this is actually for assessing the carbon footprint of building operations around the world. This is correct. So common carbon metric basically is a protocol. ये क्या है basically? It is a protocol developed by, कौन develop किया है? This protocol is developed by United Nation Environment Program का जो एक sustainable buildings and climate initiative. तो इसका शॉर्ट फॉर्म में भी कैन राइट SBCI, करेक्ट, फॉर मेजरिंग एनर्जी यूज and reporting greenhouse gas emissions from building operations. So answer will be A. Clear? Like this common carbon metric for measuring energy use and reporting greenhouse gas emissions from building operations. Now next question. Which of the following have species that can establish a symbiotic relationship? Symbiotic relationship basically comes under mutualism. करेक्ट, एक होता है सिम्बायोटिक, होता है प्रोटो कोऑपरेटिंग, फॉर एग्जांपल जिसको हम बोल सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन मींस व्हेन एक साथ रह रहे, दे लिविंग टुगेदर ओनली सो दैट बोथ कैन गेट बेनिफिट, प्लस प्लस, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. दिस सिनेडारियंस आर नथिंग बट दे आर कोरल्स, इसको आप साफ साफ लिख सकते हो कोरल्स. सो कोरल्स डेफिनेटली दे आर हैविंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एल्गाई प्लस जूजेंथलाई, सो ये तो हमको पता ही है. फंगई, सो फंगई अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हो वहां यू मस्ट हैव कवर्ड कि सर्टेन फंगई दे लिव बेसिकली इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, करेक्ट. जो प्लांट्स होते हैं दे प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. एंड फंगई आल्सो लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गाई, और जो बनाते हैं आपका लाइकेन, correct. Fungi also lives in symbiotic relations with the algae. So this will become lichens. So second is also the answer. So first and second is correct. Now protozoa also form actually symbiotic relationship with other organisms, correct. So again it is also a correct statement. So answer will be 1, 2 and 3. Again I will rate it is an easy question. Next is R2 code of practice. R2 code of practice constitute a tool available for promoting adoption of क्या? Adoption of, so it was basically environment responsible practice in electronics recycling industry. अगर आपने इंडिया का पढ़ा हो ई वेस्ट रूल्स, उसमें एक चीज है जिसको बोलते हैं EPR सर्टिफिकेट. EPR सर्टिफिकेट क्या है? एक्सटेंडेड producer responsibility. So what is the extended producer responsibility? It is the responsibility of the producer or manufacturer जिसमें कि whatever the product they are actually launching, these products are can be easily recycled, reused. That is their responsibility. If their products are able to recycled, deassembled, reused, then these agencies, these producers will going to get those certificates.
So R2 code of practice is also just like that only, because यहाँ पे जो R2 होता है it basically stand for responsible recycling, correct? And it is a standard specifically created for electronics recycling industry by sustainable, किसने किया है? By sustainable electronics recycling international, correct? So this is an example of circular economy. This is example of circular economy. तो ये आपको पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके you need to cover what does it mean by circular economy. So answer will be A only. Next question basically ये already है R2 responsible recycling, already we have done it. Now next is why there a concern about copper smelting plant. अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? बिकॉज ड्यूरिंग लॉकडाउन इन 2020 बेसिकली जो वेदांता में कॉपर प्लांट वाज देयर, सॉरी तमिलनाडु में एक प्लांट था वेदांता कॉपर प्लांट जो शट डाउन कर दिया गया था. कुछ कंसर्न थे उसके, बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेस्ट वाज गोइंग ऑन. सो इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया. क्वेश्चन ये है ऑप्शंस कि they may release lethal quantities of carbon monoxide into the environment. See, carbon monoxide definitely will going to be released. जहां पे भी combustion होगा वहां पे carbon monoxide और carbon dioxide definitely will be there. So in copper smelting process, first जो carbon होता है it combusts with oxygen in the air to produce carbon monoxide, and this carbon monoxide reacts with ore and removes one of its oxygen atoms, releasing carbon dioxide. Hence it does not release lethal quantity. क्योंकि टर्म लीथल थोड़ा सा ज्यादा जो टर्म लीथल है ये एक्सट्रीम हो गया है. लीथल क्वांटिटी इज नॉट ए करेक्ट वर्ड. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम इनकरेक्ट. तो जहां जहां पे whenever you find such extreme statements, extreme actually word in the statement, if you are not aware then take them as incorrect. So first is not the answer. तो A will not be the answer, C will not, D will not be the answer. So answer will be B only. लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं. Second, copper slag can cause the leaching of some heavy metals into the environment. See, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है. चाहे वो कॉपर हो या एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो या आयरन ओर इंडस्ट्री हो, definitely they are going to release heavy metals into the environment. Toxic pollutions like lead, arsenic, correct, selenium, they are going, these heavy metals and particulate matters from copper smelters contaminate the environment. So this is the correct statement. Second is they may release sulfur dioxide as a pollutant. See, copper smelters जो होते हैं और थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं या आयरन ऑक्साइड आयरन ओर्स होते हैं, उसमें डेफिनेटली दे आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड. और जहां जहां पे भी कोल अगर आप यूज करोगे देन डेफिनेटली सल्फर तो रिलीज होगा ही. सल्फर ऑक्साइड्स डेफिनेटली विल गोइंग टू बी released. So again this is also a correct statement. Clear? Next is with reference to furnace oil. Furnace oil means bhatti ka tel. Consider the following statement. It is a product of oil refineries. So answer yes. जब आप ऑयल रिफाइनरी करते हो, जो रिफाइनरी जो भी आप क्रूड ऑयल लेके उसको रिफाइन करते हो, डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, कैरोसिन आता है, एक लास्ट प्रोडक्ट भी होता है जो थिक होता है, विस्कस होता है, हाईली करेक्ट. सो दैट प्रोडक्ट बेसिकली जो डार्क विस्कस रेसिडुअल फ्यूल बचता है ऑब्टेन्ड बाय ब्लेंडिंग हैवियर कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल, सो दैट इज ए फर्नेस ऑयल. डोंट कंफ्यूज इट विद टायर ऑयल. टायर ऑयल इज डिफरेंट. दिस इज अ फर्नेस ऑयल. सो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, नो डाउट. क्वेश्चन क्यों पूछा था यूपीएससी ने 2021 में? अगेन करंट अफेयर रिलेटेड था, बिकॉज a plea has been filed at that time in National Green Tribunal about the use of petcoke and furnace oil that is causing emission of sulfur dioxide and other pollutant. So this was in July 2020. So आपको petcoke के बारे में जरूर पढ़ना है, because already यूपीएससी ने like PET के बारे में क्वेश्चन पूछा था in 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स में. तो please read about the petcoke and how it is dangerous for the environment. So then it was question was asked. So first is correct. Second is some industries use it to generate power. Yes, furnace oil uses
include basically heating up homes, fuel trucks, to lighting of furnaces, producing steam for industrial uses, and for generating electric energy. So this is definitely a correct statement. Third is its use causes sulfur emissions into the environment. यही हमने न्यूज बताया था, मेन तो यही था. So sulfur is a natural component of crude oil. Correct? Sulfur is a natural component of crude oil that is present in the gasoline and diesel unless removed. So furnace oil has high component of sulfur leading to its emissions when burned. So correct answer होगा आपका D. अब furnace oil कैसे दिखता है? So it looks like this only. Correct? Next question we are moving. What is blue carbon? Again easiest question है ये. What is blue carbon? Basically blue carbon क्या होता है? जो भी कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड एज ब्लू कार्बन. लाइक एस्चुरीज के पास, कोस्टल एरिया में, मैंग्रूव्स एरिया में, वेटलैंड एरिया में, उसको बोलते हैं ब्लू कार्बन. सो दिस इज द इजी क्वेश्चन. आई विल रेट इजी क्वेश्चन. Next is in nature, which of the following are most likely to be found surviving on a surface without soil? जिसमें soil की जरूरत नहीं हो. करेक्ट? अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट का स्टैटिक पोर्शन पढ़ा हो, करेक्ट, जो कि सक्सेशन के बारे में, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन में आपने जरूर पढ़ा होगा कि व्हेन सॉइल इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, द फर्स्ट एक्चुअली थिंग्स दैट कम देयर, इट इज लाइकेन्स एंड मॉस. प्राइमरी सक्सेशन में जरूर जाके अगेन यू आर जस्ट गोइंग टू कवर प्राइमरी सक्सेशन. करेक्ट? So in that में you must have covered lichens and mosses are there, जो सबसे पहले वहां पे आते हैं. करेक्ट? क्योंकि lichens have a specific requirement for their habitat. These requirements are basically water, air, nutrient, light and substrate. Substrate means जिसके ऊपर उनको होना हो. Soil नहीं है, कोई रॉक हो सकता है, लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, but not soil. जो mosses होते हैं, they are also non-flowering plants which produce spores and have stems and leaves but not the roots. So they are not having two roots. जब roots ही नहीं है तो उनको soil की क्या जरूरत है? Otherwise fern and mushrooms, they will not be the answer basically. Correct? Fern and mushrooms, they will not be the answer. क्यों? Because जो fern होते हैं is a member of a group of vascular plants. So they grow in soils only. Mushrooms होते हैं, they are basically fleshy and spore bearing, okay, fruiting. So they also require basically soil. They produced above the ground on soil, so they are also not the answer. So answer would be lichens and mosses. So it will be the 2 and 3. Again I will rate it as an easy question. I will rate it as an easy question. क्योंकि अगर आपने प्राइमरी सेक्शन पढ़ा हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाएगा. So these were the questions which was asked actually in UPSC prelims in 2021 paper from the environment sections. I hope you understood all these questions. If you have any doubt, you can ask the doubt in the comment sections and any one of the member of our team is going to answer that doubt. ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यूअस रहेगी. जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा फॉर क्वेश्चंस 2020 के लिए. ये 2020 प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस एनवायरनमेंट सेक्शन से आए हैं दैट विल गोइंग टू बी डिस्कस्ड. So that is the reason is I request you please subscribe this channel and hit this bell icon so that you can get the notification whenever new video is coming. And please don't forget to like the video. Thank you everyone and all the best for the exam.